ये मैंने 18 साल की उम्र में लिखा था. इट्स कॉल्ड द गर्ल हु वांट्स टू श्रिंक. और रिसेंटली इसमें कुछ एडिशन किया था. सो काफ़ी टाइम बाद शायद इंग्लिश में बोल रही हूँ. 1-2 दफ़ा मैंने इंग्लिश बोला ही नहीं है. शी इज़ द सेम गर्ल हु वांटेड टू ग्रो अप. It was expected that she makes a big name. And honestly, it was not imposed. She grew up that way. The girl who wanted to grow. The girl ready to touch the sky, jump the brink. Clothes could, but her spirit could not shrink. She grew up wishing for a body like her mother. She grew up wishing for a height like tall father. She wanted school to end, tends to come, within the time it takes to blink. Her clothes didn't shrink this time, but by class 11th, little did she know her dreams would belittle and shrink. She grew up dreaming of love. She grew up dreaming of love, a prince charming to kiss away the pain and find lost glass slippers, save her from goons. Love gave her a bitter taste. Love gave her a bitter taste. Text sizes to him had to shrink. Self-respect could not be tossed for a trick. She fell in love till her heart gave up. The fairy tale movie quietly went for a shrink. And then a spell of magic, blessings and turn of cards in destiny, she landed in college. School was over, but she wept as it did. Holding the shrunk clothes close to her heart, she saw 18 years and life was beginning to shrink. Yes, she found love, a bond she always dreamt there has to be. That was now finally hers. The dream of college was now true. Clothes that shrunk were given away. A new wardrobe awaited her. Everything grew up, but now the grown girl of 18 is shrinking. So that innocence and the childish vibe which got lost in all those years can be relived. And now the inner child is expressive, keeps her heart vibrant. Yes, I call that girl me. She shrank and all is happy. But if I could talk to 18-year-old Gauri, I'd say, 9 years since you wrote this and this Gauri wants to tell you, you do not need to shrink. You're on TV debates. Your person doesn't want you to shrink. You've outgrown toxic bonds to manipulative bosses. You won't be pawned. Only if you knew growing up doesn't mean shrinking. It just means choosing your battles and this world is yours. No matter late or early because you worked hard for it. मैं बहुत टाइम से एक पोम लिखना चाह रही थी और बोलना चाह रही थी. लिख चुकी हूँ मैं. एक ही बारी में मैंने वो लिख ली थी. लिटरली मैं शायद से 19 अप्रैल मुझे याद है, मैं दोस्त के साथ गुफ्तगू करते करते मेरे को एकदम आइडिया स्ट्राइक किया. मैंने लक्ष्मण उर्मिला लिख ली, बट आज मैं वो नोटबुक ही छोड़ आई हूँ. तो मैं ढूंढ रही थी, मैथिली शरण गुप्त की किताब है साकेत और एक किताब है उर्मिला. तो उसमें से कुछ छंद हैं जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है और ये मेरी दादी के लिए ट्रिब्यूट है जिन्होंने मुझे हिंदी साहित्य के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया, इंट्रोड्यूस किया. उसमें मेरे दादाजी मेरी इंग्लिश की नींव है और मेरी दादी मेरी हिंदी की नींव है. तो मतलब मैं किसी भी न्यूज़ चैनल पे अब बोल सकती हूँ केवल उन दोनों की बदौलत. मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे दादा दादी ने बड़ा किया. मैं तो ये बिलीव करना चाहती हूँ कि शायद वही मेरे पेरेंट्स थे, चाहे उम्र दराज थे. मैं तो अपने मम्मी पापा को अपने भाई बहन जैसा मानती थी, क्योंकि मतलब वो कहते हैं ना, बॉस को डायरेक्टली रिपोर्ट करती थी मैं. तो दादा दादी की डायरेक्ट अप्रोच रखती थी. मैं बचपन से ही बहुत पहुंची हुई हूँ. तो वापस आते हैं. प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश. संसार रंग स्थल सूत्रधार, साकार सर्वेश्वर निर्विकार, भूभार हारी प्रभु पूर्ण काम, श्री राम हे शिरसा प्रणाम. अलभ्य है अन्य चरित्र ऐसा, देखा यही धन्य पवित्र ऐसा. गंभीर भी उन्नत दोषहीन, प्राचीन भी होकर है नवीन. पदभस्त पदैव शुभासन, अपूर्व सी है जिसकी अवस्था. प्रत्यक्ष देवी सम दीप्तिमाला, प्रासाद में है ये कौन बाला. सौंदर्य से दे लता झुकी है, गई जहां दृष्टि वहीं रुकी है. लटे कपोलों पर 3-4,
बढ़ा रही है सुषमा आपार। उमंग से पूरित अंग अंग दिखा रहे एक नवीन रंग, बना रहे भूष्य विभूषणों को, लजा रहे जो बहु पूषणों दो को। रखे हुए चित्रपटी समक्ष किए हुए निश्चल पूर्ण लक्ष्य, बना रही है ये चारों चित्र, दिख रही कौशल है विचित्र। बैठी कई है सखियां समीप, अलोल है लोचन रूप द्वीप, प्रासाद भी नीरव शांतिधारी, क्या देखता है विचित्रकारी। महाव्रती लक्ष्मण की सुवामा, पवित्रता की प्रतिमा लालमा, प्रपूर्ण काम ये उर्मिला है, सुयोग क्या है क्षिति को मिला है। श्री राम होंगे युवराज आज, विलोकने को उनका समाज, अधीर हो के ये पूर्व से ही, बना रही चित्र पवित्र देही। हे चित्र मानो सबके सजीव, बातें सभी अद्भुत है अतीव, गए दिखाए सब दृश्य ऐसे, आदर्श में हो प्रतिबिंब जैसे। लगी हुई एक बड़ी सभा है, लगी हुई एक बड़ी सभा है, फैली सभी और महाप्रभा है, मध्यस्थ सिंहासन राम का है, सुदृश्य मानो सुरधाम का है। पूरा हुआ है सब काम और हुए सभी चित्रित ठोर ठोर, श्री राम की विभाग पूर्ति, बनी अभी लक्ष्मण की मूर्ति। प्राणेश को राघव के समीप, प्राणेश लक्ष्मण, हम अपने पतियों को अपना प्राणेश कहते। सारा फेमिनिज्म ढह जाता है उस मंडप में। जब आप सिंदूर लगाते हैं, आप नतमस्तक होते हैं, रोज रोज आप अपने पति की प्रतिमा चाहे मंदिर में ना रखें, वो आपके दिल में उसमें विराजमान है। तो प्राणेश को राघव के समीप, तमाल के पास प्रफुल्ल नीप, लगी बनाने वे देवी ज्यों ही, होने लगे सात्विक भाव त्यों ही। पूरा हुआ चित्र न रूप संग, होने लगे कंपित प्राणी, रुकी न रोके मन की उमंग, चेष्टा हुई व्यर्थ बहा सुरंग। तो ये बहुत लंबी कविता है, एक पूरी किताब है। बस संक्षेप में आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या हुआ था। राज्य पलट गया था, 14 साल का वनवास, और वनवास में सीता को सानिध्य मिला राम का। सिर्फ 1 साल का वियोग था जिसपे हमने इतनी कहानियाँ लिख दी। वो 14 साल के वियोग की क्यों बात नहीं होती, उस पर मैं रचना अगली बार ज़रूर सुनाऊंगी, आपसे वादा करती हूँ। पर इतना ही बताऊंगी कि 14 साल उर्मिला, स्लीपिंग ब्यूटी आप इंग्लिश में सुनते हैं, वो रियल थी, क्योंकि उन्होंने निद्रा देवी के साथ एक बार्टर किया था। एनर्जी कहते हैं ना, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। सो लक्ष्मण जी की निद्रा जो सिक्योरिटी में जा रही थी, वो कहाँ जाएगी। उर्मिला वाज लाइफलेस फॉर 14 ईयर्स, और पूरी अयोध्या ने एक भी बच्चा नहीं किया था। ये वो अयोध्या है जिसने भी सीता को कैरेक्टर असैसिनेट किया था, लेकिन वहीं के वो लोग थे जो मत भ्रष्ट होने से पहले उन्होंने भी 14 साल ब्रह्मचर्य रखा था कि जब तक हमारे राजा नहीं एक उत्तराधिकारी पैदा करेंगे, हम भी अपनी पत्नियों को हाथ नहीं लगाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मेरे सीनियर हैं काजिम, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि अब तो नवाबी सबकी ही घट रही है। एक तरीके से राज्य में क्या हो रहा है हम सबको, और फिर जीशान ने कहा कि हमें भी बच्चों को सुनाने के लिए कुछ कहानियाँ मिलेंगी, मेरे भी बच्चे को ये सब दिखेगा। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हम आज जिन राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके जैसा आचरण एक मतलब हम लोग तिनके के बराबर भी उसको रख लें, तो शायद इस समाज में त्विषा शर्मा दोबारा नहीं होंगी। और दोबारा जो कैलाश हिल्स में केस हुआ था, वो 22 साल की बच्ची जो IITN थी, जो DPS की थी, जो इकलौती बेटी थी, वो ऐसे खत्म नहीं होगी। बस हमें अपने अंदर राम और सीता को जगाना है।